ये पहलगाम एक सेफ एरिया, एक जन्नत का नज़ारा था। कभी हमने ऐसा ना सुना था, ना देखा था, ना हम देखना चाहते हैं ऐसा मंजर। जो बड़ा इन्वेस्ट करता है होटल में 15 लाख दे के 16 लाख दे के लीज पे होटल ले लेता है, उसका बेचारे का सर निवाला ही निकल गया सर। It's afternoon on a bright summer day in Pahalgam, and a bunch of young men, all ponywalas, are sitting idly near the main pony stand of the town. The drooped shoulders, vacant stares, and complete lack of enthusiasm have replaced the usually buzzing atmosphere in this place. This bunch awaits tourists at this launch pad for starting pony rides to at least a dozen sightseeing locations in and around town, including the Basaran Meadows, commonly called the mini Switzerland of India. But the scenic location has been closed for the last year in the wake of gruesome terror attack at the meadows. It's been 1 year since some of the tourists who had taken this route behind me in Pahalgam to reach the Basaran Valley were shot dead from the close ranges by the terrorists from Pakistan. That gruesome attack led the entire nation to a moment of grief and mourning as well as anger against the Pakistan-sponsored terrorism. But how did this all happen? And what was the route that they took? And how did the tourists suffer from that? And what has Pahalgam been after that terrorist attack on 22nd April last year? We are tracing it all from Pahalgam. The president of the local Poniwala Association was among the first ones to reach the meadows, and the scenes he saw, he said he never imagined he would have seen in Pahalgam. मैं 22 अप्रैल को पहलगाम से नीचे लगभग 4 किलोमीटर था, गनीश बलगाम उसका नाम। हाँ हाँ, वहीं मुझे कॉल, उस दिन हुआ क्या? आप कहाँ थे? आपको मुझे उस दिन कॉल आई। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि कॉल इसलिए आई कि मैं इनका प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसका संपर्क ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो मैंने कॉल करने की कोशिश की, किसी ने मेरी कॉल रिसीव नहीं किया। तो बाद में मैं खुद को संभाला और मैं निकला खुद वहाँ की तरफ, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारे जहनों में ये नहीं था कि पहलगाम एक सेफ़ एरिया है, कि ऐसा घटना वहाँ पे पेश आएगी, ये हमारे जहनों में ही नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से निकला, मेरा ब्रदर इन लॉ मेरा साथी आया, वो सज्जाद। तो वहाँ पहुँच के हमने वहाँ पर चिल्लाती हुई औरतें देखी। लगभग 25 मिनट, क्योंकि पैदल, क्योंकि पुलिस हमसे 5-7 मिनट पीछे ही पहुँचा, क्योंकि वो लॉन्ग ट्रैक से आया, हम शॉर्ट ट्रैक से गया। तो वहाँ पहुँचते ही हमने एक रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। पहले हमने उनको दिलासा दिया। वहाँ पे उस समय एक तो डेड बॉडियाँ थी, तो दूसरा जो औरतें थी और उनके बच्चे थे जो वहाँ पे गिरे हुए थे, उनके बच्चे और उनके पति वो वाइफ थे, वो उनके लिए चिल्लाते थे। हम उनके करीब गए, उनको पानी पिलाया, दिलासा दिया, हम आपके बचाव के लिए आए थे। सबसे हमने पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाली, अब सब घोड़े वाले यहाँ पे आ जाओ, हमें रेस्क्यू करना है। बाद में घोड़े वाले भी आए हैं, ज़्यादा नहीं आए क्योंकि नीचे से फौज ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ पे भयानक मंजर था, तो इसलिए वो नहीं आया। ऐसा सीन कभी देखा था आपने? नहीं, ना हम देखना चाहते हैं। हमने ऊपर वाले से यही दुआ किया है कि ये पहलगाम एक सेफ एरिया, एक जन्नत का नज़ारा था। कभी हमने ऐसा ना सुना था, ना देखा था, ना हम देखना चाहते हैं ऐसा मंजर। The attack completely changed the fortunes and landscape of the picturesque town. Union Home Minister Amit Shah, during his visit in the immediate aftermath of the attack, took stock of the town's tourist sites and ordered a review. It led the government to close all 19 tourist sites in the town. Slowly and gradually, some of them have been opened, but the attack changed the outlook of tourism in the town. Earlier, several key sites were opened even without the deployment of the security forces. Basran was one of them. Now, no tourist sites can be opened without the umbrella of the security forces. Hence, these tourist sites, which are not covered by the regular tracks and were accessible only by ponies, are still closed. 22 अप्रैल को वो हादसा हुआ था सर, उससे पहले जितने आते थे कम से कम उससे 20% कम ही आ रहे हैं। कारण जो है सर, यहाँ के जो साइट सीन्स है, मेन साइट सीन जैसे कि चंदनवाड़ी है, बैसरन जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो है यहाँ पे पॉइंट है, दिनर वैली वाटरफॉल, वो सारे पॉइंट्स जो है वो बंद ही है सर। ये कब से बंद है? ये तब से ही बंद है सर, जब से वो
हादसा हुआ था। करीबन सर जी यहाँ पे इतनी साइड सीन्स है पहलगाम में घूमने के लिए, अगर यहाँ पे 7 दिन भी कस्टमर मतलब टूरिस्ट रुकेगा उससे वो कवर नहीं कर पाएगा। अब जो हमको गवर्नमेंट ने निकाल के दिए थे कुछ पॉइंट्स, जैसे कुछ टोटल 12 पॉइंट्स है, उसमें से सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ओपन है, जो मेन है वो बंद ही है सर। सारे के सारे बंद वो सारे के सारे बंद ही है। दो बस- जो हैं ये हमेशा से खुले थे, वो कि वो भी अभी कुछ दिन पहले ही खुले हैं। वो सर लगभग 6-8 मंथ से खुले हैं। जो 2-3 पॉइंट्स खुले हैं वो 8 मंथ्स, उसमें से एक आरो वैली है, बेता वैली है, वो भी फिलहाल बंद ही है आज। हमारे घोड़े एक तो ट्रैकिंग कराते थे, वो तो बंद ही है सर। तो अभी कराते क्या है ट्रेकिंग वाले रास्ते पे जहाँ पहले घोड़े जाते थे, तो आज आप कहाँ लेके जाते हो जो लोग घोड़े पे अभी बैठते हैं? आज के जो पॉइंट्स है वो कानीमर्ग है, पहलगाम वैली है, और हम लोकल पॉइंट्स कराते हैं। उसमें 2 टेंपल आते हैं, गौरी शंकर टेंपल, मामलेश्वर टेंपल, वहाँ लेके जाते हो वहाँ पे भी लेकर जाते हैं और थोड़ा राइड कराते हैं, बच्चे वगैरह को किसी को राइड करना हो वो भी। शहर में ही। हाँ, लेकिन ये जो टूरिज्म पॉइंट्स है 2-3 वो भी हम दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म वो सिक्योरिटी रखी हुई है। बस जो मेन है वो बंद है। 22 अप्रैल 2025 से पहले लगभग कितने टूरिस्ट मिलते थे आपको एक घोड़े पे? रोज करीबन 2 राउंड लगता था। 2 राउंड लगते हाँ, आज मुश्किल से 1 राउंड मिलता है, लेकिन उसका रेट भी थोड़ा कम है। थे। पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट है? पहले जो हम औसत कमाते थे 1200-1300 एक घोड़े का। एक घोड़े का। हाँ, उसमें से जो आदमी का खर्चा सब काट के 700 बचता था दिन का। आज 700 मतलब कमाई है। कमाई है, उसमें से खर्चा वर्चा काट के 300 बचता है। आपके खुद के घोड़े हैं, पोनी है, या फिर मेरे आप खुद चलाते के हो? मेरे खुद के 2 घोड़े हैं सर। खुद के 2 घोड़े। तो अभी फिर घर चलाने में फिर दिक्कत होती है, कैसे चलता है घर हाँ, आप लोगों का? दिक्कत हो रही है सर, दिक्कत हो रही है। वो तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा ही होगा। In the wake of the terror attack, security has been beefed up in the town and there has been increased scrutiny of all the stakeholders. Poniwalas, who are the major stakeholder in the town, have been issued a QR code that tourists can instantly verify with a normal scan using Google Lens. Poniwalas have welcomed the move as it adds to the confidence building measures, but they are longing for the opening of tourist sites. ये तो हमारा दिहाड़ी समझो, यहाँ पे जो बड़ा इन्वेस्ट करता है होटल में 15 लाख दे के 16 लाख दे के लीज पे होटल ले लेता है, उसका बेचारे का सर निवाला ही निकल गया सर। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है सर, हमें बहुत सीक्रेट एक्शन लेना मतलब लिया जा रहा है इधर। हम पुलिस वाले बोल रहे हैं मतलब स्कैन QR कोड, ये अच्छा भी है सर। इससे क्या होगा कि टूरिस्ट जो है उसे विश्वास होगा, नहीं मैं किसी ठीक बंदे के साथ जा रहा हूँ घूमने, उससे कोई परेशानी नहीं QR होगी। कोड मिला कब से है? 2-2.5 महीने से सर। Hundreds, if not thousands, of the bookings in Pahalgam were cancelled in wake of the terrorist attack that killed 26 people, including one local poniwala. The tourists have returned to Pahalgam, much to the delight of the local business community, who rely to earn their livelihood from the pony rides as well as hotels and the cab rides. But the scene in Pahalgam is far from normal. Much of those scenic locations in Pahalgam are still closed, affecting the business prospects of the pony riders as well as the cab riders. But the security officials are saying that all those locations which were earlier not marked by the presence of the security forces will remain closed as long as the security situation there does not improve. नहीं नहीं, देखो कैसे है ना, लास्ट ईयर जो हादसा हुआ आई थिंक वो 22 तारीख को हुआ था, तो इसलिए मैं जानबूझ के इसी डेट पे आया ताकि मैं दिखा सकूं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, है ना, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो लोग बहुत ही दिलदार है, अच्छे हैं, और कुछ मुझे लगता है सेफ्टी है। ये जो जगह है जैसे बैसरन है और भी जगह है साइट सीइंग वाली, हाँ, हाँ। वो सारी जगह बंद है। हाँ, ये जगह बंद क्यों है समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक खोल देना चाहिए ना, अपनी आर्मी बहुत अच्छी है, पुलिस फोर्स अच्छा है, BSF है, इतनी सारी आर्मी BSF सब कुछ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर क्यों। बैसरन खुला होता हाँ। आज जाते आप? हाँ पक्का जाता, खोल देना चाहिए। ताजमहल पे भी अटैक हुआ था, ताज अपना जो होटल ताज है ना, वो थोड़ी बंद रखा, खोल दिया थोड़े दिनों में। अभी आप 1 साल भर आप बंद करोगे तो कैसा होगा ना, लोग हम दूर से आए, लाख रुपए खर्चा करके आए, तो फिर बंद रखेंगे तो लोग कैसे आएंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे, पैसे कमाएंगे कैसे यहाँ के लोग, लोकल लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए ना, रोजगार, ऐसा सीन है। A bunch of schoolmates from Gujarat had no fears about coming to Pahalgam and said that attacks such as the one in April last year can't deter people at large. नहीं, ऐसा पहले था, लेकिन अब जब देखते हैं सिक्योरिटी और गवर्नमेंट का जो रूल्स देखते हैं, यहाँ की जो लोगों की भावनाएं दिखी, तो इस सबसे लगा था, लोग जो आते जाते रहे कि भाई नहीं ऐसा है तो होता है, जो हमला होता है कहीं भी हो सकता है। तो हमने सोचा चलो कुदरत के
यहाँ जाते हैं, पूरा देखते हैं। ये तो होगा तो कुदरत देख लेगा। अगर आज बैसरन खुला होता तो आप लोग जाते? तो बहुत अच्छा लगता और बहुत मज़ा आती और बहुत अच्छा लगता। फिर भी यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सिक्योरिटी उससे भी बढ़िया है और यहाँ के लोगों का प्यार है, जो कि आप प्रेस वाले हो, आपका भी बहुत प्रेम भाव है, तो बहुत अच्छा लगता है वैसे तो यहाँ आप पे। जाते सर अगर बैसरन आज खुला होता 22 हाँ, तारीख को जो हाँ, घटना जाते- घटी थी, जाते फिर हो। भी जाते? वो तो प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो होगा, लेकिन जाते हम जरूर। डरते नहीं है। कुछ भी होगा वो लिखा होगा, जब भी होगा लेकिन जाते बैसरन? जाते जरूर। जाते। और लोग सब जाते हैं? जब सब जाते जाते और जाना ही चाहिए ना, यहाँ तक आए हैं तो। There is no dearth of enthusiasm among tourists visiting Pahalgam. A bunch of 30 from Nagpur are absolutely unaffected by last year's history of the town. More so when just a few meters away lies a granite wall with the names of all those 26 victims. The memorial commemorating all those victims is located right at the city's entrance, offering a somber reminder of the town and its recent history. However, the tourists coming to Pahalgam are ready to make fresh starts. थोड़ा टाइम तो लगेगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो हुआ है वो एकदम भूलने लायक तो चीज़ नहीं थी। वो भूलने के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा डर निकलने के लिए भी टाइम लगेगा, बट चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी कहीं से, तो बस वही कर रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। निसर्ग ने इतना बड़ा सौंदर्य दिया हमारे लिए, उसका तो आनंद उठाएंगे। एक का घटना हो गई तो उसको तो भूलना ही चाहते ना हम। जब ये घटना घटी थी तब लोग आप लोग पेपर पे पढ़े होंगे, हाँ आपके पुणे के भी हाँ cases हाँ 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 डाले family के हाँ किसी के death हुई। हाँ। तो उसके बाद भी आप लोग इतने नहीं, दूसरे दिन बोलते तो हम आ जाते, कोई चिंता नहीं, आ जाते। टेररिस्ट से हमको डर नहीं है, टेररिस्ट से डर नहीं हमको। उनको हमसे डर लगना चाहिए एक्चुअली, इसलिए कि वो हम एक आधी नहीं बार डरने करते वाले ना, हैं। वो एक आधी बार करते, हम तो डेली घूमने आते। 365 दिन हम यहाँ आने की हिम्मत रखते। वो तो एक ही दिन चोरी छुप के आ गए, वो चोर के माफी आ गए ना वो। हम तो साव है, हम अपने देश में घूम रहे, हमारा क्या गुनाह है। Located right at the entrance of the Pahalgam town, this granite memorial having etched all the names of the 26 victims of the Pahalgam terrorist attack serves as the reminder of the ghastly terror attack that happened here last year. This gives a view to the town that has been marred by silence as well as the grief. The tourists who are coming here, they are not going to all the places that the tourists were earlier going out to. The economy has been in shambles. The poniwalas are struggling to make ends meet. But the spirit is not low anymore. People are flocking here back again from all parts of the country, and they're saying that they are not afraid of the terrorists, and rather the terrorists should be afraid of their spirit. Hundreds of people have assembled here even today, when this is the first observance day of that ghastly terror attack. That shows that the spirit of the nation as well as its people is high, and they are not going to be defeated by the ghastly conspiracy of the Pakistani-sponsored terrorism. With video journalist Muhammad Hamad in Pahalgam, I am Mayank for The Print.